Okay, so we are done with stages involved in forfeiting and cost involved in forfeiting. The next part of our chapter is characteristics of forfeiting. Today we will be, completing this chapter, factor and factoring and forfeiting. So by now I hope you understand what is difference between international factoring and forfeiting. So you don't have to misunderstand both of them. Okay, both are different. Let us start with characteristics of forfeiting. See, it converts deferred payment exports into cash transactions. Now, I already told you yesterday also, in the last lecture, that our credit sales are converted in cash sales. Therefore, deferred payments, that means the long term payments which we are going to receive maybe after 6 months. Okay, we will receive today only. So our deferred payment exports are converted in cash transaction. That means we will not have to wait for long period of months, days, okay, time. We will be getting cash on the spot, providing liquidity. Because we are getting cash on the spot, therefore there is a liquidity in our company and there is a good cash flow to the exporter, so that he can manufacture, he can trade on goods, he can run his business smoothly, because every day he needs cash, and therefore he is made available with the cash flow, a good amount of cash flow. Okay, therefore this is also a very important feature. Characteristics means we are studying about its features. Next is absolves exporter for from cross-border political or conversion risk associated with export receivables. Means it helps the exporter to run out of the risk that is covered because of political, maybe conversion risk, foreign exchange risk, because you get the cash on the spot and it is received as per the rate that is running today. You receive cash today because the forfeiter will pay you, no, and it is the responsibility of the forfeiter to recover the amount from the customer on the due date. You don't have to wait till the due date. So maybe the exchange rate fluctuate, may fluctuate on the future date, and it may go down, so the loss will not occur to you. So the conversion risk, political losses will not be occurring to you. Okay, next, finances available up to 100%. Very, very important feature of the forfeiting. See, international factoring will never give you 100% finance. Factoring always gives you 75 to 80% finance. Correct? That is what is written in the bracket. Conventional credit means international factoring credit. It always gives you up to 80% finance. Means advance which is available to you on the spot after selling all the export bills. 100% finance will be available. They will give you 100% cash. Of course, after deducting their fees and commission, okay, they will give you, and it is always without recourse. Remember, the characteristics of forfeiting is always without recourse. Its main feature is without recourse. That means client will never have to bear any burden of credit risk. That means bad debts. Okay, acts as an additional source of funding and hence do not have any impact on exporters' borrowing limits. It does not reflect as debt in the exporter's balance sheet. Very important feature, very. See, now forfeiter will purchase all the export bills. He will give you 100% payment. Now this payment which has been given by the forfeiter to the exporter, it is not an advance. It is an advance. It is not a liability over the head of the exporter. Remember this point. Okay, this is not a liability. So what I was saying, act as an additional source of funding means it is not a type of loan that is made available to the exporter. No,
It is not a type of loan. It is a type of advance that is made available to an exporter. So in the balance sheet, you will never show it as a borrowing fund. You are not borrowing from the forfeiter. No. Forfeiter is giving you your money, but it is given in the advance. It is your money. He is giving you in the advance. So it is not a liability. You will not have to pay him back. Otherwise, see, if you have taken any loan, suppose you have taken any loan from a bank. So on a due date, you will have to pay the bank the amount of the loan that you have borrowed from. Okay, so the amount that has been taken as a form of loan has to be paid back. But this is not a loan. It is additional source of funding, and therefore it is not a nothing got to do with balance sheet, and it will not be shown as a liability. आया समझ में? मतलब इसका लाइबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं. हाँ, ये थोड़े टाइम के लिए आपका एडवांस इनकम है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो है, लेकिन अब तो मेरा पूरा पैसा मुझे मिल गया ना, फॉरफेटर ने मुझे दे दिया. नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉरफेटर टू रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर. So it is not my liability. It is my own money which has been given by the forfeiter in advance. Okay. Next, provides fixed rate finance. Fixed rate finance means the finance will not fluctuate. The finance rate will not fluctuate. It provides fixed rate finance. ठीक है. अभी फिक्स्ड रेट फाइनेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दिया था. जैसे आपका अमाउंट है, एक्सपोर्ट के बिल्स हैं, वो बिल्स के रिस्क को देखकर, कितना रिस्क कौन सी कंपनी के साथ कितना रिस्क अटैच है, कितने कस्टमर्स के साथ कितना रिस्क अटैच है, वो रिस्क देखकर आपको रेट बताते हैं. अभी रेट क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है. फिक्स्ड रेट मतलब कम, जो फाइनेंस का रेट होता है ना, डिस्काउंट रेट, जैसे 10%, 12%, दैट इज फिक्स्ड. एंड हेंस रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन डज नॉट अराइज. तो जो इंटरेस्ट रेट का फ्लक्चुएशन होता है ना, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम होगा, वो रिस्क यहाँ पे अराइज नहीं होता है. क्यों नहीं अराइज होता है? फ्लक्चुएट होने ही नहीं देते हैं ना ये लोग, फिक्स्ड रखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सपोर्टर इज फ्रीड फ्रॉम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन. अभी देखो, एक्सपोर्टर को कुछ देखने की जरूरत नहीं है. He does not have to go and collect money from the debtors on the due date. He does not have to remember the due dates. Okay, he does not have to keep an accountant to keep accounting records of all the debtors, sales ledger account, and then showing the opening balance, how much should be the closing, and how much is the balance to be received from each debtor. मतलब जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है ना, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सारा काम कौन उठा लेता है? फॉरफेटर. आपको कुछ नहीं करना है, आपने सारे बिल्स उसको बेच दिए, अब सारा काम उसका. ओके. प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट. नहीं, ये ना बैंक के क्रेडिट कैसे होते हैं, बिल्स डिस्काउंटिंग कैसे होता है, शॉर्ट टर्म होता है. तो ये वैसे नहीं होता है, अनलाइक मतलब ये वैसा नहीं होता है. ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है. ये लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं आपको. मतलब ये जो फॉरफिटिंग है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. जैसे इंटरनेशनल फैक्टरिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, वैसे फॉरफिटिंग हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होता है. सेव्स ऑन कॉस्ट एज ईसीजीसी कवर इज एलिमिनेटेड. अभी इसकी थोड़ी कॉस्ट भी हमारी बच जाती है. कैसे? क्योंकि ईसीजीसी कवर भी एलिमिनेट हो जाता है. ईसीजीसी मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. ये ना हमने एफआरए में किया है. मतलब शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बैंकिंग के टाइम पे, जब हमने बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स किया था. ये ना जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट जिनका बिजनेस होता है, उनको ना क्रेडिट गारंटी मिलती है. मतलब अगर आपने आपने सामने वाली कंपनी को एक्सपोर्ट किया और आपको गारंटी नहीं है, तो बैंक आपको गारंटी देती है कि हम इनके बेसिस पे आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप इनको एक्सपोर्ट कीजिए पूरा. उससे कहते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी. क्रेडिट गारंटी मतलब आप उनको क्रेडिट पे माल बेचिए, आप उनको क्रेडिट पे गुड्स बेचिए, हम गारंटी दे रहे हैं कि पेमेंट कहीं भी डूबेगा नहीं आपका. इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी. और ये किसके थ्रू दी जाती है? बैंक्स के थ्रू. तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन.
ठीक है, तो ये ईसीजीसी कवर मिलता है आपको। कवर मतलब रिस्क, जो रिस्क होगा ना, आपको लग रहा है ना डर कि ये पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका रिस्क का कवरेज देते हैं वो आपको, गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ईसीजीसी कवर होता है ना, उसके ऊपर है ना बैंक आपसे कमीशन चार्ज करती है, तो ये आपके लिए तो खर्चा है ना। तो ईसीजीसी कवर है ना यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। क्यों एलिमिनेट हो जाता है? क्योंकि फॉरफेटर की सारी सर्विसेज में ऑलरेडी ये ईसीजीसी कवर मिल रहा है ना आपको। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट वो रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, निकल गया, डिस्कार्ड हो गया। बात समझ आ रही है ना? ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन एज फाइनेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट बिल्स। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है, कुछ झंझट नहीं, पेपर डॉक्यूमेंट्स का कोई झंझट नहीं होता। बस आपने बिल्स बेचे, ठीक है, सारी डिटेल्स दे दी आपने कस्टमर की, बस हो गया, आपको फाइनेंस मिल गया, आपको कैश मिल जाएगी। अब फॉरफेटर देख लेगा कब कैसे वसूल करना है कस्टमर से। सो इट इज ऑल बेस्ड ऑन सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। फॉरफेट फाइनेंसर, जो जो मेन फॉरफेट होता है, जो पर्सन होता है, जो एक्सपर्ट जो आपको सर्विसेज देता है फॉरफेटिंग की, उसे कहते हैं फॉरफेटर। जो फॉरफेटर फाइनेंसर होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ द एक्सपोर्टर्स ट्रेड ट्रांजैक्शन। अब वो रिस्पॉन्सिबल है आपके ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब कहाँ एक्सपोर्ट किया है, कौन सा बिजनेस का नाम क्या है, कौन सी कंट्री का है, कंट्री का जो करेंसी रेट है वो क्या है, और वो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, वो सब वो देखेगा, आपको देखने की कोई नीड नहीं है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड ट्रांजैक्शंस, therefore no need to commit all of his business or significant part of his business। तो ऐसे नहीं होता है कि वो आधा पार्ट ले रहा है और सिग्निफिकेंट पार्ट ले रहा है, अनसिग्निफिकेंट पार्ट छोड़ दे रहा है, नहीं, वो सारा ही कमिटमेंट लेता है आपके बिजनेस का, ट्रेड ट्रांजैक्शंस का। ओके, फॉरफेट ट्रांजैक्शंस आर कॉन्फिडेंशियल। हाँ, ये तो कॉन्फिडेंशियल ही होते हैं, बाहर कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल होते हैं ये। तो ये सारे क्या थे, हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में? कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ forfeiting. So you need to first explain the meaning of the forfeiting, okay, and then you can of course, like if you want to make a chart and then represent it through some chart and then उसकी explanation points की, तो वो आप अपना देखना कि मतलब कैसे उसको प्रेजेंट करना है। ओके, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, चलो बढ़िया, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फॉरफेटिंग। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स, प्रोज मीन्स व्हाट? Advantage, Very good, advantages. And cons means? disadvantages. Disadvantages means loopholes. ओके, सो हम फॉरफिटिंग के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, प्रोज देख लेते हैं। 100% फाइनेंसिंग मिलती है, इसमें आपको वेट नहीं करना है कि 80% अब मिलेगा, 20% मेच्योरिटी डेट पे मिलेगा, या कस्टमर से सारा पैसा वसूल हो जाने के बाद मिलेगा। नो, यू डोंट हैव टू वेट अंटिल मेच्योरिटी डेट। ओके, सो मैच्योरिटी डेट तक वेट करने का जरूरत नहीं है, पूरा एक साथ मिलेगा। वेरी गुड। ओके, इम्प्रूव्स कैश फ्लो। improves cash flow means improves cash flow means what? Now because you don't have to wait until maturity date, right? You don't have to wait till the date of the date where customer comes and pays you. No, you will get all the cash on the spot। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सारी कैश पहले ही मिल जाएगी। कैश मिल गई, बिजनेस में रोटेशन के लिए कैश आ जाएगी। बिजनेस के रोटेशन के लिए कैश आ गई मतलब आपका बिजनेस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश की कभी शॉर्टेज नहीं होगी ना। तो कैश की शॉर्टेज नहीं होगी तो बिजनेस पे उतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपके पास ऑलरेडी ऑन द स्पॉट कैश अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं ना, हम वही बोल रहे हैं, वो इम्प्रूव्स कैश फ्लो। रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अभी ये पॉइंट तो मैंने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बताई थी। देखो, एक्सपोर्टर इज फ्रीड फ्रॉम क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अलग से कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत, या फिर सेल्स ट्रांजैक्शंस को देखने की जरूरत, ट्रेड ट्रांजैक्शंस को देखने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी। सारा कुछ काम कौन कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देख रहा है? फॉरफेटर, ठीक है। इंक्रीज्ड
ट्रेड अपॉर्चुनिटी। अब ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ जाएंगी ना, कैसे? क्योंकि आपके पास कैश तो ऑलरेडी अवेलेबल हो गई ऑन द स्पॉट। अब उसी कैश में से आप और गुड्स खरीद कर, रॉ मटेरियल खरीद कर और गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ जाएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है किस वे में आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? नेक्स्ट है आपका Yes, ma'am. हाँ जी, एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अब आपके ऊपर नहीं है बर्डन कि आपने नहीं देखना है कि अगर कस्टमर ने फ्यूचर पे फॉरफिटर को नहीं दिया, बैड डेट्स हो गए, तो आप सर पे नहीं उठाने वाले ये बर्डन। एलिमिनेट्स, एलिमिनेट्स मतलब आपको ये रिस्क नहीं उठाना, निकल गया ये रिस्क, फॉरगॉन, हम ये रिस्क नहीं उठा रहे। आई बात समझ में? इट इज टू बी borne बाय फॉरफिटर, because always remember forfeiting is without recourse. Without recourse to the client means client will never take the burden of the future risk, credit risk, and credit risk means bad debts. If any bad debts arises, all the burden has to be taken by forfeitor. So client के ऊपर तो कोई burden ही नहीं है, ये तो आपके लिए benefit है। तो ये हम वही तो पढ़ रहे हैं, बेनिफिट्स ही तो पढ़ रहे हैं। फॉरफिटिंग की सर्विसेज अगर मैंने ली तो मुझे क्या बेनिफिट्स हैं, हम वही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा और भी कुछ रिस्क हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो निकल जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं। कौन से? एक्सचेंज रिस्क। अगर ड्यू डेट पे एक्सचेंज रिस्क कम हो गया, करेंसी डॉलर का करेंसी बढ़ गया और मेरा $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज था, अब $1 इज इक्वल्स टू 68 हो गया, तो दो दो $1 पे, सॉरी हाँ बराबर, $1 पे ₹2 कम हो गए ना, इंडियन करेंसी कम हो गई, डॉलर बढ़ गया, तो डॉलर महंगा हो जाएगा, इंडियन करेंसी कम, तो फिर उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी ना, कम पेमेंट मिलेगी। तो पेमेंट कम होने की वजह से आपको जो नुकसान होगा वो आपको बेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कौन सी सर्विस ली है? फॉरफिटिंग। फॉरफिटिंग में क्या होता है? 100% फाइनेंस आपको मिल चुका, अब जो रिस्क है वो फॉरफिटर देखेगा। समझ आया? एक्सचेंज रिस्क जो है ना, वो आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एंड पॉलिटिकल रिस्क, जो पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, वो भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है, फॉरफिटर देख लेगा। ठीक है। जो परमिशंस लगती हैं, जो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं वगैरह वगैरह, वो तो वो पॉलिटिकल रिस्क तो बहुत सारे होते हैं, वो जो होते हैं वो, हाँ चेंज अगर होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, चेंज होने की वजह से जो स्कीम्स चेंज हुई और टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए, तो जो चेंजेस की वजह से जो रिस्क हो गया ना, लॉस हो जाता है हमको, वो मुझे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉरफिटर विल लुक आफ्टर टू ऑल दोस रिस्क। ठीक है। अब आते हैं कॉन्स पे। कॉन्स मतलब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसके लिए हाई फीस चार्ज की जाती है। लॉन्ग टर्म है ना ये, लॉन्ग टर्म के लिए तो फीस तो हाई चार्ज करेंगे, और आपको 100% फाइनेंस दे रहे हैं, मतलब आपको रिस्क उठाने की जरूरत ही नहीं है, सारा झंझट फॉरफिटर देखता है। तो रिस्क तो ऑफकोर्स फीस तो हाई होगी ना इसकी। ठीक है। अब नॉट अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड, हाँ ये शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो ये डिसएडवांटेज है। नॉट अवेलेबल इन फाइनेंशियली वीक कंट्रीज, जो फाइनेंशियली वीक कंट्रीज है ना, वहां पे फॉरफिटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्यों? उनके पास उतनी कैश ही नहीं ना कि 100% वो लोग सामने कस्टमर को दे सके, क्लाइंट को। आपको 100% फाइनेंस देना पड़ता है ना फॉरफिटिंग में। तो आप अगर एज अ फॉरफिटर हैं तो आपके पास ही फिनेंस नहीं है उतना, तो आप कैसे सामने वाली क्लाइंट को पे करेंगे 100%? ठीक है। तो फाइनेंशियली वीक कंट्रीज जो होती है ना, वहां पे ये कम चलता है बहुत फॉरफिटिंग। अब फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग के बीच में डिफ्रेंसिएशन याद रखो, डिस्टिंग्विश भी आते हैं। ठीक है। तो ये भी आ सकता है, कंपैरेटिव राइट अ नोट ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग। So this is how you can represent your answer, or you can represent it in the form of statement. ठीक है। अभी देखो फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग में जैसे कि हमने पहले से हमेशा से पढ़ा है, फैक्टरिंग हमेशा आपको इनवॉइस, जितने बिल्स होते हैं ना, जितने बिल्स की वैल्यू होती है ना, उसका 75 to 80% ही फाइनेंस करते हैं।
whereas factoring gives you 100% finance. So this is the biggest difference between factoring and forfeiting. Next is factoring is always remember, it is always short term finance for 2-3 months, maybe 1 month, or maybe 15 days also, as short as 15 days. ओके सो यहाँ पे तो 90 डेज लिखा हुआ है, चलो इसके हिसाब से देखते हैं. 90 डेज टू 150 डेज तक के लिए होता है ये. 90 डेज मीन 3 मंथ्स टू 150 डेज, मतलब थोड़ा 5 मंथ्स के आसपास या 4 मंथ्स के आसपास होता है. नहीं 4 नहीं, 5 months. हाँ 4 से ज्यादा ही होता है, और 6 से कम. तो जो 6 से ज्यादा और ईयर्स तक चले, 2 years 7 years, यहाँ पे तो 7 years लिखा हुआ है. देखो कितना लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ये. ठीक है, 6 मंथ से ज्यादा जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है. अच्छा यहाँ पे देखो क्रेडिट वर्दीनेस. फैक्टर डज नॉट क्रेडिट रेट डज नॉट सॉरी फैक्टर डज द क्रेडिट रेटिंग इन द केस ऑफ नॉन कोर्स फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन. जब आप नॉन कोर्स फैक्टरिंग लेते हैं ना, नॉन कोर्स मतलब विदाउट द रिकोर्स टू द क्लाइंट, जिसमें क्लाइंट बर्डन नहीं लेता है, उसमें फैक्टर लेता है पूरा बर्डन. तो जब फैक्टर पूरा बर्डन लेता है ना, तो क्रेडिट रेटिंग करता है वो कि कौन सी कंट्री को सॉरी कौन सी कंपनी, कौन सा कस्टमर और कौन सी कंपनी को मुझे कितना क्रेडिट देना चाहिए, और उस क्रेडिट के बेसिस पे आगे चल के आपको फाइनेंस दिया जाता है. ठीक. और यहाँ फैक्टरिंग में क्या होता है, फॉरफेटिंग बैंक रिलाइज ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द अवेलिंग बैंक. जो अवेलिंग बैंक होती है ना, यहाँ पे वो क्रेडिट रेटिंग देती है, और जो वो क्रेडिट रेटिंग देगी ना, उसके हिसाब से फॉरफेटिंग बैंक को डिसीजंस लेने पड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड. सर्विस प्रोवाइडेड मतलब यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडेड है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, जो डेली रूटीन के बिजनेस है ना आपका, सेल्स ट्रांजैक्शंस, उसका भी सर्विस आपको मिलती है फैक्टरिंग में. लेकिन फॉरफिटिंग में आपको डेली जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है ना, वो नहीं मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट, फॉरफिटिंग में रिकोर्स. अब हमने तो पढ़ा है ये, फॉरफिटिंग में हमने टाइप्स पढ़े हैं, उसमें तो विथ रिकोर्स भी था, विदाउट रिकोर्स भी था. लेकिन फॉरफिटिंग में, फैक्टरिंग में तो हमने पढ़ा है विथ भी है, विदाउट रिकोर्स भी है, लेकिन फॉरफिटिंग में ऑलवेज विदाउट रिकोर्स. फॉरफिटिंग में कभी भी रिकोर्स नहीं होता है. समझा? ठीक है. अभी अभी हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में भी, मीनिंग में पढ़ा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे ये पॉइंट. तो आपको ये पॉइंट तो अच्छे से याद होनी चाहिए. अच्छा, इसका जो सेल्स है, सेल्स टर्नओवर पे डिपेंड करता है, मतलब कितना टर्नओवर है आपका, उसके हिसाब से सेल्स डिसाइड होता है. और यहाँ पे कितने बिल्स हैं, एक्सपोर्ट बिल्स, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट बिल्स है 4, तो 4 जगहों पे सेल्स हुई है ना. और यहाँ पे टर्नओवर है, कितनी कंपनीज को बेचा, कितना टर्नओवर है, 2 करोड़ का टर्नओवर है, 3 करोड़ का टर्नओवर है. तो टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड होता है आपका सेल्स. और यहाँ पे सेल्स कैसे डिसाइड होता है, बिल्स के हिसाब से, कितने बिल्स हैं उस हिसाब से आपका सेल्स चेक किया जाता है. ठीक है. ये बहुत ऐसे सिंपल है, ये तो आपका डिस्टिंग्विश, ये तो आपको भी पढ़ के ही समझ में आ जाता है. अब नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव एनालिसिस, दैट इज लास्ट पार्ट. उसके बाद हमारा फिनिश चैप्टर हो जाएगा. ठीक है. सो कंपैरेटिव एनालिसिस. नाउ कंपैरेटिव एनालिसिस में इन्होंने तीनों चीजें ले ली, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है, फिर उससे रिलेट किया था मैंने फैक्टरिंग, फिर फैक्टरिंग में हमने सुना था इंटरनेशनल फैक्टरिंग, जो कि किससे मिलता जुलता है, फैक्टरिंग से मिलता जुलता, सिमिलर बट नॉट सेम. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर. Same means exactly same, no difference between them. And similar means there are similarities, there are same things, but we have a few differences between them. When we have a very few differences between the 2 points, we say they are similar. We don't say they are same. Okay? So I hope you understand what is similar and same. Okay, somewhat same, yes. Not completely same. Very good. चलो अभी आगे देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस में. अब एक एक पॉइंट को देखेंगे. स्क्रूटिनाई क्या करते हैं हम यहाँ पे, इंडिविजुअल सेल्स ट्रांजैक्शन, एक बिल भी आप बैंक को जाकर बेच सकते हो. यहाँ पे पूरा सर्विस ऑफ सेल्स ट्रांजैक्शन, पूरी सर्विस आपको मिलती है सेल्स ट्रांजैक्शन की.
पर यहाँ पे भी इंडिविजुअल मिलता है, इंडिविजुअल बिल। एक्सपोर्ट बिल जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है। अब आप बोलोगे मैम ये बिल डिस्काउंटिंग और फैक्टरिंग तो सॉरी फॉरफिटिंग तो सेम हो गया। नहीं, बिल डिस्काउंटिंग इंडिया, फॉरफिटिंग एक्सपोर्ट बिल्स जो होते हैं। जो एक्सपोर्ट बिल अगर आपको लेके जाना है तो वो फॉरफिटिंग सर्विस होती है। अगर अगर क्या बोल सकते हैं इसको, क्रॉस बॉर्डर नहीं है, इंडिया में आपने कुछ बेचा है और बिल है वो 3 मंथ्स का, तो उसको आप बिल डिस्काउंटिंग करवाते हो, ना कि फॉरफिटिंग की सर्विस लेते हो। कभी भी फॉरफिटिंग की सर्विस आप इंडिया की सेल्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए नहीं लेंगे। फॉरफिटिंग मतलब एक्सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, जो आप, हाँ बराबर लिखा है आपने, एक्सपोर्ट बिल्स जो होते हैं ना उसके लिए फॉरफिटिंग सर्विसेज होती है। तो आप ये मत समझना बिल डिस्काउंटिंग और फॉरफिटिंग तो सेम हो गया, यहाँ पे भी इंडिविजुअल सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इंडिविजुअल सेल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है। एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंस, अभी इसका फाइनेंस कितना होता है 75 to 80, इसका 80, इसका 100, ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट रिकोर्स, ये हमेशा विथ रिकोर्स होता है। विथ रिकोर्स मतलब इसमें ना क्लाइंट को, ऑलवेज अ क्लाइंट टेक्स अ बर्डन। बैड डेट्स अगर होते हैं ना, अगर ड्यू डेट पे कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक किसको वापस बोलेगी, क्लाइंट को, कि आप देखो आपका कस्टमर पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टरिंग में क्या होता है, दोनों चीजें अवेलेबल है, विथ एंड विदाउट रिकोर्स। और फॉरफिटिंग में ओनली विदाउट रिकोर्स, ओनली एंड ओनली विदाउट रिकोर्स, ओके। सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन हु विल हैंडल, बैंक कुछ नहीं लेती है आपका झंझट सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन का। ही विल ओनली टेक, बैंक विल ओनली टेक बिल, जो एक पर्टिकुलर बिल आप लेने लेकर आए हो ना बैंक के पास, वो लेगी और उससे रिलेटेड कस्टमर से पैसा मांगेगी। अगर वो भी नहीं देंगे तो वो भी आपको ही बर्डन उठाना पड़ेगा उसका। सो नॉट हैंडल्ड बाय बैंक्स, यहाँ पे हैंडल्ड, डन बाय बैंक्स बट डन बाय अ फैक्टर, यहाँ पे नॉट डन बाय अ फैक्टर, फॉरफिटर, ठीक है। इसमें सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं उठाते, हाँ लेकिन कुछ कुछ चीजें उठा लेते हैं वो, जैसे एक्सपोर्ट से रिलेटेड कस्टमर्स, एक्सचेंज रेट्स एंड ऑल, वो पूरा नहीं उठाएंगे। लेकिन हाँ जो एक्सचेंज रेट्स और जो ड्यू डेट्स हैं वो सब, जो जो मेन चीजें वो उठाते हैं। टर्म्स, यहाँ पे टर्म की बात करी हुई है। टर्म मतलब बिल डिस्काउंटिंग शॉर्ट टर्म होता है, फैक्टरिंग भी शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन फॉरफिटिंग क्या होता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आप ये यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं। मीडियम क्यों बोला है, क्योंकि 6 मंथ्स 8 मंथ्स ये जो होता है ना मीडियम होता है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको ऐसे लिखना है एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे प्लीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पिक उठाकर स्क्रीनशॉट निकाल के यहाँ पे डाला। तो ये आपका है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज क्रिएशन, मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर वो क्या कहते हैं इसे, वो अगर आपको ये सर्विस देते हैं ना तो आपसे अगेंस्ट में क्या लेते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, उसके अगेंस्ट में आपसे चार्ज लेते हैं। अब जो चार्ज लिया जाता है ना बिल डिस्काउंट में, उसे कहते हैं हाइपोथिकेशन। मतलब आप कुछ तो गिरवी रख के आते हो कि आपका नुकसान हो गया ना तो वो मेरी भरपाई मेरे से निकाल देना। मेरे गुड्स को मैंने हाइपोथिकेट कर दिया, समझो मैंने बोल दिया कि अगर आपका नुकसान होगा ना, हाँ एज ए सिक्योरिटी आप क्या रख के आते हो। वेरी गुड, अ वेरी गुड वर्ड हलीमा, थैंक यू। तो आप जो चार्ज क्रिएट करते हो ना उसे कहते हैं सिक्योरिटी। मतलब चार्ज का मतलब होता है सिक्योरिटी, यानी कि आप सिक्योरिटी के बेसिस पे बैंक को क्या दे के आओगे बिल डिस्काउंटिंग के लिए। जब नुकसान हो जाएगा, कस्टमर नहीं पे करेगा तो आपने पे करना है ना वो नुकसान, विथ रिकॉर्ड है ना। तो उसके लिए आप हाइपोथिकेट करते हो। हाइपोथिकेट मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रख के आते हो, जैसे गुड्स हाइपोथिकेट करके आते हो, तो वो गुड्स बेचकर वो आपका नुकसान वसूल कर लेंगे ना। जो बैंक का नुकसान हो जाएगा वो नुकसान वसूल कर सकते हैं। फैक्टरिंग में क्या होता है, असाइनमेंट, मतलब कोई ना कोई चीज असाइन करके आते हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी आप असाइन करके आते हो। नॉन, जैसे अभी यहाँ पे तो ये शॉर्ट टर्म है तो मैं कार का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती हूँ, व्हीकल का एग्जाम्पल तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ फॉर फिटिंग आप व्हीकल भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो बेचकर फॉरफिटर नुकसान निकाल सकते हैं, बट यूजुअली ये विदाउट रिकोर्स होता है, ठीक है। स्टिल बट आपको कुछ ना कुछ तो असाइन करना पड़ता है, आपके नाम का प्रॉपर्टी कुछ तो, सो दैट उनको भी तो, फॉरफिटर को भी तो एश्योरिटी हो कि मतलब
हमको रिकवरी होगी, पूरा नुकसान थोड़ी ना कोई बेयर करता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है ये? ओके। Yes, ma'am. Yes, so we are done with the chapter. Please see if you have any doubt. वैसे तो मैंने अपनी full अपना I have tried my best to explain you so that you don't have any doubts. But still, if you find any doubts, please please clear it out. I will ready to clear. या फिर आप लीजिए टाइम, वैसे भी चैप्टर तो हो गए, हम अभी न्यू चैप्टर शुरू नहीं करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। तो आप लीजिए टाइम, रीड कीजिए। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? इज इट ओके? Okay, ma'am. Yes, ma'am.